Good morning and welcome to today's video lecture. And today we shall start the very important theorem which is going to use to find the nth derivative of a product of two functions. And the name of this theorem is Leibniz theorem. So I am just going to state the Leibniz theorem, and then after we will prove it, and then we apply the theorems to the questions, how and which type of questions can be concerned with the Leibniz theorem. So I am going to write here Leibniz theorem. William Leibniz was a great mathematician from Germany, and he has stated a very important result. Actually, it is a theorem. It is a result of nth derivative of product of two functions. Product of two functions. You know, well, if you are given u and v, and of course u is a function of x and v is a function of x, then how you find the first derivative of u and v? It has been explained in the class 12. The first function taken as u, second function taken as v, and the rule is the first function remaining same, differentiation of second plus first function differentiation and the second function remaining same. So this is the product rule, we say. And now Leibniz was given a statement of this theorem regarding the product of nth derivative of product of two functions. N may be 100, N may be 1000, N may be 1 lakh. Suppose you are going to find the 10th derivative, 100 times of derivative of product of u and v, then how will you use to find it? And so it is very useful, the theorem is Leibniz. So I am just going to write here statement. If u, of course, is a function of x and v is a function of x, are any two functions of x, any two functions of x, such that these two functions of x are differentiable. Any number of them. Then the nth derivative of their product is noted by b to the power n u in v and given by b to the power n u into v is equal to n c 0. b to the power n u into v and is plus n c 1 b to the power n minus 1 u into v plus n c 2 b
b to the power n minus 2u into b square plus dash dash NCR b to the power n minus r du into b to the power r plus dash dash NCN b to the power n minus n u into b to the power n d. This is the statement. Actually, NC0, you know well, NC0, the coefficients, the NC0, NC1, NC2, NCR, NCN are the coefficients, can be determined by NCR is equal to factorial N upon factorial R factorial N minus R, where capital B is nothing but is B by Dx. This is the statement of Leibniz theorem. This statement is going to help whenever you are to build product of two functions, then the nth derivative of two functions can be obtained, can be calculated in this way, in this pattern, and with the help of this theorem. But it is very important, suppose you are given any two functions, then you are free to choose any one of them as a u, any one of them as a v. But what should be criteria adopted in choosing u and v, so that you can apply this result, Leibniz theorem, and you can get easily the application of this theorem to evaluate the results given. ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिस थ्योरम की बात हम कर रहे हैं इसका नाम है लेब्निज थ्योरम, और लेब्निज थ्योरम में हमने देखा कि अगर कोई भी दो फंक्शन लेते हैं, u एक फंक्शन लिया x का, v भी फंक्शन लिया, v भी लिया x का फंक्शन, ये इस तरह से है कि दोनों ही फंक्शन आपके x के हैं और दोनों ही डिफरेंशिएबल है एनी नंबर ऑफ फंक्शंस, तब जो है nth डेरिवेटिव ऑफ उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव जो है लिखा जाता है v टू द पावर n u इनटू v से, और ये गिवन देता है और यही थ्योरम कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लेब्निज थ्योरम। तो फर्स्ट वी शैल ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम। अब इस थ्योरम की प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा याद देता हूं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं जो आपको क्लास 11 12 में दिए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा था बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम दिया था, वो भी n में होता है। उसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए ये लेब्निज थ्योरम ने प्रोडक्ट का सेट दिया। अगर u और v कोई भी दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट u into v होगा, उसका n का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें ये चूज करना होता है कि उसमें u कौन सा ले, कौन सा v ले। इस बात को ध्यान इसलिए देना पड़ता है कि यहाँ देखा जाए तो u को वही चूज किया जाए जिसका n का डिफरेंशिएशन निकल जाए। जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया जाए x स्क्वायर into b to the power x, इसको कह दिया जाए कि n का डिफरेंशिएट करिए, तो u को आपको लेना हो तो आपको x स्क्वायर का n का डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये तीसरी बार में 0 हो जाएगा, तो ये यूजलेस हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग लिखा जाएगा e की पावर x का u e की पावर x का n का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। इसलिए हम इसको ले लेंगे हम u और इसको ले लेंगे v, x स्क्वायर को लेंगे v और e टू द पावर x को ले लेंगे u। ऐसे में हम आसानी से थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं ये बताने जा रहा था कि इसके प्रूव करने के लिए आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा क्लास 12 में, 11 में शायद। वो ये होता था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया गया है n के टर्म्स में और यू वांट टू प्रूव दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो उसमें आप क्या करते थे, मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने उसको n इक्वल्स 1 के लिए देखा कि ट्रू है कि नहीं ट्रू है। फिर आपने अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो फिर आपको देखो मकसद एग्जीक्यूट करना पड़ता था कि
n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। फिर बाद में ये दिखाना पड़ता था कि n इज इक्वल k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी k के सक्सेसर के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब है कि n के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। ये कंसेप्ट लेके इस थ्योरम को भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव दिस थ्योरम स्टेटमेंट 1 to prove the statement 1 we shall use principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी ये दिया गया स्टेटमेंट 1 है, इस स्टेटमेंट को दिखाना है कि n के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो पहले हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे इस स्टेटमेंट में, फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड n क्या मिलता है, राइट हैंड साइड क्या मिलता है। अगर दोनों सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हम ये सपोज करेंगे कि हम ये जो दिया गया स्टेटमेंट है n इज इक्वल कोई भी फिक्स नंबर k के लिए सही है, ट्रू है। फिर बाद में हम देखेंगे कि उस फिक्स नंबर का यानी k का सक्सेसर लेते हैं, यानी एक आगे बढ़ा देते हैं, तो n इज इक्वल k प्लस 1 ले लेते हैं, उसके लिए भी ये सही हो जाता है। इस वास्ते हम ये कह देंगे इस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो लेट अस हैव द रिजल्ट। इसको प्रूव करने के लिए हम चलते हैं पहले हम करते हैं we put n equals 1 in the given statement, n equals 1 हम given statement में रखते हैं, we get तो हमारा क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट 1 होगा वो मिलेगा d to the power 1 into u। ये राइट हैंड साइड पे रखते हैं तो राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट क्या मिलेगा, ऑफ स्टेटमेंट 1 जो मिलेगा इसकी बात कर ले आपसे। यहाँ मिलेगा 1c0 d to the power 1 u यानी d जैसे into b एज प्लस nc1 यानी 1c1 d to the power 0 यानी u एंड b यही मिलता है। इसके बाद जो है आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यह 1c2 is false, 1c3 is false, 1c6 is false। और क्यों false होगा? इसलिए false होगा क्योंकि आप जानते हैं NCR exists only when n is greater than r। या r इक्वल टू यदि r बड़ा है r से या बराबर है, उस दोनों के लिए आपका ये प्रयोग करता है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट होता है। और ये आपका आता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये ऐसे आता है। अब इस वास्ते के लिए बात करें हम तो 1c0 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0। अब यहाँ हो जाएगा तो फिर फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। 1c1 की बात कर लें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल ये अपॉन 1 माइनस 1 होगा, ये हर चीज ये हो जाएगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1। फिर यहाँ आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 अगेन। तो इस तरह से हम ये बात हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा देखें तो हमारा ये मिलता है NC0 1c0 की वैल्यू भी 1 है, ये हो जाएगा d into d। 1c1 की वैल्यू भी 1 है, ये हो जाएगा आपका u d। और आप देखें इट इज वेरी क्लियर दैट
left hand side of statement 1 is equal to right hand side of statement 1 and so statement 1 is true for n equals 1. Statement 1 is true for n equals 1. ये क्यों बराबर हो गया? क्योंकि देखो ये आपका है एक्चुअली ये है आपका d by dx और u into यही है। प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? d by dx of u फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एडिटिव प्लस फर्स्ट एडिटिव सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। यही बात है, यहाँ यही बात कही जा रही है कि d by dx u into d एडिटिव प्लस u एडिटिव और d by dx of u, ये बात कही जा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए सही है। अब एज पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये बात कही गई कि अब जो रिजल्ट आपका 1 है इसको k n = k के लिए सही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, ये सपोज करना है, ये एग्ज्यूम करना है और उसकी सहायता से यू नीड टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1। इफ इट इज प्रूव्ड देन वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। यही बात आपको करनी है। तो पहला हमने कर लिया n = 1 के लिए सही हो गया। अब हम एग्ज्यूम करेंगे। We now assume the given statement is true for n = k, where k is a fixed number. We assume that the given statement 1 is true for n = k + 1. K n = k, any fixed कोई भी फिक्स हो सकता है। ये आपको 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, कोई भी नंबर ये फिक्स कर। और जरा सोचिए कि अगर कोई स्टेटमेंट n = 1 करोड़ के लिए सही है, अगर वो 1 करोड़ की वेट के लिए सही हो जा रहा है, 10 करोड़ के लिए सही है, 10 करोड़ 1 के लिए सही हो जा रहा है, तो आप कह के सबके लिए सही है। यही बात का कांसेप्ट ये दिया गया लेबनिज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसीलिए हम ये बात करते हैं। सो दैट इज हमारे पास ये हो गया e to the power k u into d is now equal to k is e to the power k d as is plus k c1 e to the power k minus 1 d into d plus k c2 e to the power k minus 2 into d square u plus k c3 e to the power k minus 3 u into d cube d plus and so on। और यहाँ आ जाएगा k c आपका यहाँ ग्राफ का k c k, ये इसके पहले वाला आ जाएगा k c k minus 1, ये हो जाएगा आपका d u I to the power k minus 1 d k minus 1 और d, और अगला आ जाएगा k c k और ये हो जाएगा u into d to the power k। ये हमारे पास मिल गया। इसको मान लिया जाए ये हम या इसको हम आप शायद ये देख नहीं रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ a c k और d सॉरी u और d to the power k ये मिलेगा और इसको मान लेते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को इक्वेशन कर चुके। अब आपको जो प्रूव करना है उसको जरा ध्यान से देखिए। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए आपको दिखाना है k + 1 के लिए सही है, यानी कि इसमें इस स्टेटमेंट में जहां-जहां k दिख रहा है वहां k + 1 होना चाहिए। यहाँ होगा k + 1, यहाँ भी k + 1,
यहाँ भी k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1, जहाँ जहाँ इसमें k दिख रहा है स्टेटमेंट में वहाँ k प्लस 1 होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। इस ध्यान देने में जरा सोचा जाए कि यहाँ k प्लस 1 का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब क्या समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो u और v है इसको हम k बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एक बार और कर दें तो k प्लस 1 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन पे q को डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 with respect to x b। तो ये क्या आएगा जरा इसको ध्यान से। जब ये क्या है डिफरेंशिएट किया जाएगा b टू द पावर k प्लस 1 और ये u into d। यहाँ k से 0 ऐसे रहेगा और यहाँ पर v by dx और यहाँ ऐसे रहेगा b और b to the power k into d प्लस यहाँ होगा k c1 और b और b to the power k minus 1u into d into d ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा k c2 और b और b to the power k minus 2 u into b square। इस तरह से ये बातें हमारे पास आती जाएगी और लास्ट में आ जाएगा आपका k c a और b u into b to the power k। ये अभी इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जरा यहाँ ध्यान से देखें। जब इसको सॉल्व करने के बाद आप करेंगे तो क्या होने जा रहा है इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ जब हम देखेंगे यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो b टू द पावर k प्लस 1 और u into d हो गया है। राइट हैंड साइड पे बात करें तो ये k से 0 होगा। अब यहाँ देखें ब्रैकेट में तो ये हो गया डिफरेंशिएशन है और ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। ये वाला डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये यहाँ हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन यानी कि b टू द पावर जरा यहाँ देखें ध्यान से इसको करेंगे हम तो हो जाएगा b टू द पावर k प्लस 1 into I into v as it is plus b to the power k as it is into d प्लस ये काम यहाँ करें k c1 के लिए यहाँ आ जाएगा b to the power k into d as it is plus b to the power k minus 1u into d square प्लस फिर अगला करें k c2 अब यहाँ करें ये हो जाएगा आपका d to the power k minus 1 u d square u और प्लस d to the power k minus 2u और d सॉरी ये हो जाएगा k minus 1 और ये हो जाएगा d स्क्वायर ऐसे d होगा ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन k minus 1 यहाँ पर आ जाएगा k minus 1 ये हो गया घट गया एक बार थोड़े पे घट जाएगा यहाँ हो जाएगा k minus 2 इसका तो आपका वैसे ही d स्क्वायर भी है यहाँ पर आपका ऑलरेडी d स्क्वायर भी है लेकिन यहाँ हो जाएगा k minus 2 ये ऐसे बढ़ेगा और लास्ट में जो आएगा अगर इसको देखें ध्यान से तो यहाँ आ जाएगा k c और ये हो जाएगा du और d to the power k d और प्लस u और d to the power k plus 1 d ये आपका। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं टर्म वाइज लाइन टर्म वाले के हिसाब से इसको अरेंज करें। यहाँ आएगा d to the power k plus 1 u into d is equal to now देखो यहाँ पर k c 0 d to the power k plus 1 u हो गया I into d हो गया पहला। इसको देखिए और इसको देखिए दोनों एक ही है तो ये कॉमन हो जाएगा
और ये जाएगा KC0 प्लस KC1 KC0 प्लस KC1 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर KU और DU ये हो जाएगा प्लस फिर इसी तरह से ये वाला देखें और ये वाला देखें दोनों एक ही है। यहाँ हो जाएगा केस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो KC1 प्लस KC2 और ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर K माइनस 1U और B स्क्वायर D और ऐसे ये करता जाएगा। और यहाँ पर भी देखें तो लास्ट में KCK और D टू द पावर U into D टू द पावर K प्लस 1 भी है ये आपका। अब इस बात को गारंटी लेना है कि कैसे ये प्लस 1 सब लगा। तो आपने बायनोमियल थ्योरम में पढ़ा था पास्कल्स रूल से बाय पास्कल्स रूल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि NCR माइनस प्लस NCR इक्वल टू N प्लस 1 CR ये तो यहाँ तो आपका केस और ये भी आप जानते हैं कि KC0 की वैल्यू 1 होती है, K प्लस 1C0 की वैल्यू भी 1 होती है और KCK की वैल्यू 1 होती है और K प्लस 1CK प्लस 1 की वैल्यू भी 1 होती है। इन सब का इस्तेमाल करने से आप देखेंगे इसमें K और इसको रखते हैं R इक्वल टू 1 रखते हैं तो NC हो जाएगा 0 प्लस NC1 इक्वल टू जाएगा N प्लस 1C1 ये मिलेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए हम इस्तेमाल करें ये मिलेगा U टू द पावर K प्लस 1 U into V इक्वल टू K प्लस 1C0 U to the power K plus 1 into V plus ये हो जाएगा K plus 1C1 U to the power K into V plus and so on। यहाँ मिलेगा प्लस ये भी लिखिए K plus यहाँ हो जाएगा आपका K plus 1 C2 और U to the power K minus 1U और B square B plus and so on। लास्ट में K plus 1 CK plus 1 U और B to the power K plus 1 ये this statement this result shows this above result shows that the given statement is true for all values, is true for K, yeah, it equals K plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, mathematical induction it is true. Statement 1 is true. 1 is true for all values of n. For all values of n. All values of n. इस तरह से हम क्वेश्चंस को ये थ्योरम आज प्रूव हो गया आपका। अब हमको इसमें इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी बताने हैं, तो इसके एप्लीकेशन के लिए हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके एप्लीकेशन को जानेंगे। आज तो मैं सिर्फ इतना थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि दिस द प्रॉब्लम आपको निकालना हो x स्क्वायर into e to the power x, x स्क्वायर है e to the power x का है, तो इसको आप मानेंगे d, इसको मानेंगे। क्यों भी मानेंगे? क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन होगा, दो बार डिफरेंशिएशन होगा, तीसरी बार में जीरो हो जाएगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन वैनिश करता है n बार तक न जाए तो
इसको हम v मानते हैं और जिसको n बार डिफरेंशिएशन हो जाए उसको u मान लीजिए। तो जैसे इस रूट का इस्तेमाल करें हम, ये हो जाएगा n से 0 e to the power n e to the power x into x square plus n c1 e to the power n minus 1 e to the power x into 2x, एक बार डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ लिखेंगे n c2 और e to the power n minus 2 e to the power x और 2, इसके बाद वाला सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो आया ये आ गया n से 0 1 e to the power x का n बार डिफरेंशिएशन e to the power x होगा into x square plus n c1 की वैल्यू 1 होती है, इसको भी n minus 1 आएगा तो 2x और e to the power x आएगा। n c2 निकाल लीजिए, n c2 का मतलब n c2 का मतलब होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n minus 2, यहाँ से n into n minus 1 बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल n minus 2 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n minus 2 कैंसिल हो गया, यानी ये आ जाएगा आपका n into n minus 1 by फैक्टोरियल 2 और e to the power x into 2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे और इसके ढेर सारे एप्लीकेशन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए आज का वीडियो आज मैं समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे। थैंक यू।